Good morning, students. Hope you all are fine. In the last class, we discussed about four colligative properties related to ideal solution. Now, today we discuss some new terms related to osmotic pressure. That is isotonic solution, hypertonic solution and hypotonic solution. As we know, osmotic pressure denoted by pi is equal to CRT. Here C is the concentration of solution in term of molarity. R is a universal gas constant and T is a temperature, must be in Kelvin. Now let's see. If two solution 1 and solution 2 placed in a container separated by a semi-permeable membrane have same osmotic pressure at a same temperature, then these solutions are known as isotonic solution. If both solution have same osmotic pressure, then both solution have same concentration. C1 becomes equal to C2. Let's see. If for solution 1, osmotic pressure is equal to pi 1, which can be written as pi 1 is equal to C1 RT. For solution 2, pi 2 is equal to C2 RT. Temperature same है, gas constant भी same है. तो here when osmotic pressure of both the solutions are same, then both solution have same concentration. In that case, no osmosis will occur. Osmosis क्या होता है? Osmosis is the flow of solvent from lower concentration of solution towards higher concentration of solution. बट इसमें क्या है, दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है. तो दिस सॉल्यूशन आर आल्सो नोन एज आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन. बोथ हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हैव सेम कंसंट्रेशन. बट if both solution have different concentration, if solution 1 have higher osmotic pressure than solution 2, then those solution which have high osmotic pressure have high concentration. As seen by this equation, osmotic pressure is directly proportional to concentration of solution. Here, those solution which have higher concentration than other is known as hypertonic solution, or those which have lesser concentration than other known as hypotonic solution. In that case, osmosis will take place. In that case, the flow of solvent occurs from hypotonic solution toward hypertonic solution. लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का फ्लो होगा टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो तीन तरह के होते हैं सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर. दोनों सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन. जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है देन अदर, उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम है उसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. क्लियर है? नाउ biological importance of osmosis. Osmosis has large number of applications, also responsible for the growth of plants, animals, and then also important for the human body. Let's see here. 0.9% solution of pure NaCl is isotonic with human red blood cell. जो RBCs होती हैं ह्यूमन ब्लड सेल, उनके अंदर जो सेल फ्लूइड होता है 0.9% सॉल्यूशन जो प्योर NaCl है उसके साथ अगर प्लेस करें तो आइसोटोनिक होता है. बोथ है सेम कंसंट्रेशन. इफ़ RBC प्लेस्ड इन अ 0.9% NaCl सॉल्यूशन, तो दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है. तो इस केस में क्या होगा, ओस्मोसिस नहीं होगा. ना तो फ्लो ऑफ सोलवेंट इनसाइड द RBC होगा, ना ही आउटसाइड द RBC. यहाँ पे जो RBC की जो ये वॉल है ये एक्ट करेगी एज ए SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इन दैट केस दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो ना तो RBC स्वेल होगी नॉर श्रिंक होगी, तो कोई चेंज नहीं होगा इस केस में, नॉर्मल बिहेव करेगी. बट अगर बाहर जो सॉल्यूशन है जिसमें हम RBC को प्लेस्ड करेंगे, अगर वो कंसंट्रेशन मोर देन 0.9% हो जाए, जैसे कि यहाँ पे C2 जो है इज़ ग्रेटर देन C1, C2 NaCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा हो जाए, इस केस में बाहर वाला सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक. एज वी नो
ओस्मोसिस क्या होता है? फ्लो ऑफ सोलवेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक टूवर्ड्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में अगर हम आरबीसी को ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो सोलवेंट का फ्लो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा होना? फ्रॉम आरबीसी इनटू द सोल्ट सॉल्यूशन। तो इन दैट केस आरबीसी श्रिंक, और दिस श्रिंकिंग of cell is known as exoosmosis. Exoosmosis means flow of solvent outside the wall, बाहर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाए, exoosmosis. और that process is also known as plasmolysis और crenation. Now सेम केस अगर, बट यहाँ पर अगर हम कंसनट्रेशन जो है लेस कर दें, अगर हम बाहर कंसनट्रेशन लेस कर दें 0.9% से, तो बाहर वाला सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक, और अंदर सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। तो इस केस में ओस्मोसिस जो है, फ्लो ऑफ सोलवेंट कहाँ से होगा? फ्रॉम हाइपोटोनिक टूवर्ड्स हाइपरटोनिक। तो आरबीसी फ्लो ऑफ सोलवेंट होगा इनसाइड द आरबीसी, इनसाइड द वॉल, दैट इज आरबीसी स्वेल अप, दैट इज नोन एज एंडोओस्मोसिस। इस केस में आरबीसी स्वेल हो जाएगी, एंडोस्मोसिस और आल्सो नोन एज हीमोलाइसिस। तो क्लियर है? तो अगर हम आरबीसी को प्लेस करते हैं 0.9% NaCl में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम कंसनट्रेशन जो है आउटसाइड द आरबीसी चेंज कर देते हैं लेस देन 0.9% या मोर देन 0.9%, इन बोथ द केसेस आरबीसी आइदर श्रिंक और स्वेल। जो तो इसमें क्या है बेटा, देखो जो पर्सन जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, वो इसी से रिलेटेड है। इस केस में क्या होता है, जो पर्सन ज़्यादा सोल्टी फूड इनटेक करते हैं या लेस सोल्टी फूड इनटेक करते हैं उनको रहती है प्रॉब्लम। उस केस में देखो क्या होता है, जो पर्सन ज़्यादा सोल्ट इनटेक करते हैं उस केस में क्या होता है, जो बाहर सॉल्यूशन होता है आउटसाइड द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड आरबीसीज, वो क्या होता है? ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ सोलवेंट होता है वो होता है आउटसाइड द वॉल ऑफ आरबीसी, बाहर की तरफ होना शुरू हो जाता है। तो आरबीसी श्रिंक हो जाती है, श्रिंक होने की वजह से जो उसका फ्लो है वो फास्ट हो जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और जो कम सोल्ट इनटेक करते हैं उस केस में बाहर वाला जो सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक हो जाता है। हाइपोटोनिक होने से जो फ्लो ऑफ सोलवेंट है वो अंदर की तरफ होता है आरबीसी के, आरबीसी स्वेल हो जाती है, तो उसका जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है, उस केस में लो ब्लड प्रेशर रहता है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू इनटेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन आवर डाइट, नहीं तो आपको फिर दीज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो होना चाहिए डाइट में, ना तो ज़्यादा सॉल्टी फूड इनटेक करना चाहिए और ना ही लेस। तो एक एक्यूरेट अमाउंट जो होती है वो होनी चाहिए, ताकि जो हमारी ब्लड स्ट्रीम का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके साथ वो मेंटेन रहे। जैसे जो इसमें ये भी होता है, जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं लिक्विड फॉर्म में बॉडी में, उनकी जो लिक्विड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो कंसनट्रेशन होती है वो मेंटेन की जाती है, वो आइसोटोनिक होना चाहिए विद द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नाउ फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट और एनिमल्स, ऑस्मोसिस हैव आल्सो हैव मोर एडवांटेज। जैसे देखिए, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। सॉइल से जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर रूट्स में, और रूट से फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में जाता है बॉडी के, वो भी क्यों होता है, फिनोमिना किस वजह से होता है? ड्यू टू ऑस्मोसिस। सॉइल में वाटर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है तो लेस कंसनट्रेटेड है सॉल्यूशन, और रूट्स में कम है तो वो मोर कंसनट्रेटेड है। तो जो सॉइल में जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया? हाइपोटोनिक, और रूट्स में जो है हाइपरटोनिक। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो होगा अपवर्ड होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। जैसे इन एनिमल्स, वाटर मूव्स इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। Different movements of plants such as opening and closing of flowers are also controlled by osmosis. Or rapid growth of plants, germination of seed also occurs due to osmosis. Now some other phenomena on the basis of osmosis are, while making pickles, जब अचार वगैरह बनाते हैं, जैसे जो रो मैंगो पीसीज होते हैं उनको प्लेस किया जाता है पहले कंसनट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन में। ऐसा करने से क्या होता है, बाहर सॉल्यूशन क्या हो जाता है? हाइपरटोनिक। तो इस केस में एक्सोस्मोसिस हो जाती है, सारा वाटर जो होता है रो मैंगो पीसीज के अंदर से वो बाहर आना शुरू हो जाता है।
जो मैंगो की स्किन होती है वो एक्ट करती है एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इससे क्या होता है, मैंगो पीसेस जो होते हैं वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं और फिर ईजिली जो है वो पिकल्स बन जाते हैं। तो नेक्स्ट, जैसे जो फ्लावर यूजली विल्ट एंड लूज फ्रेशनेस, जो फ्रेशनेस लूज कर देते हैं उनको कुछ टाइम के लिए उसकी फ्रेशनेस को रिटेन करने के लिए उन्हें प्लेस्ड करते हैं इनटू फ्रेश वाटर। तो इस केस में एंडोस्मोसिस होता है। फ्रेश वाटर में प्लेस करते हैं तो फ्लो ऑफ सोलवेंट होता है इनसाइड द पेटल्स ऑफ फ्लावर, तो दे बिकम क्वाइट फ्रेश। नाउ वन मोर एप्लीकेशन, फ्रूट और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए नॉर्मली कैसे प्रिजर्व करते हैं, बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्ट टू इट। सोल्ट ऐड कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, सोल्ट पे ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है उसका स्पॉइलेज के, उसकी बॉडी के अंदर से फ्लो ऑफ सोलवेंट आउटसाइड द वॉल्स शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, सारा वाटर लॉस हो जाता है, तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो डाई हो जाते हैं, तो वो प्रिजर्व रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। नाउ जो पीपल्स ज़्यादा सॉल्टी फूड इनटेक करते हैं उन्हें एक प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी जो स्किन होती है, टिश्यू होते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, पफीनेस हो जाती है, एंड दैट डिसीज इज नोन एज एडिमा। क्लियर है? तो दीज आर द सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस। नाउ दिस इज ऑल अबाउट osmotic pressure, osmosis and some other phenomena which are related to osmosis. Now student, note down this question in your notebook and do yourself. A 5% solution of cane sugar, molecular weight 342, is isotonic with 0.877% solution of urea. Find the molecular weight of urea. इस केस में आप देखिए दो सॉल्यूशन है, केन शुगर और यूरिया, दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। तो इस केस में पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। पाई 1 केन शुगर के लिए अगर हम लिख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और पाई 2 अगर हम लिख रहे हैं यूरिया के लिए। इफ बोथ हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसकी हेल्प से जब आप इक्वेशन लगाएंगे एट द सेम टेम्परेचर, तो पाई 1 C1RT, पाई 2 C2RT, R से R कैंसिल हो जाएगा, C1 बिकम्स इक्वल टू C2। तो अब आप इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ओनली नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे रह जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो उसकी हेल्प से 5% सॉल्यूशन है, तो 5 ग्राम केन शुगर है और 0.877 ग्राम यूरिया है। तो यहाँ पे आपको मोलर मास यूरिया का निकालना है और केन शुगर का दिया हुआ है। तो आपको मैंने हिंट दे भी दिया है और सारा आप बता भी दिया है, आप इसको सोल्व कीजिए। और वैसे भी आपको आंसर पता होना चाहिए मोलिकुलर वेट यूरिया का क्या है, यहाँ पहले ही आंसर आपको क्लियर है, बट आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, तो आप इसे सोल्व कीजिए। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। देखिए, we have already discussed 5 colligative properties associated with ideal and dilute solution, that is relative lowering in vapor pressure, which is equal to PA naught minus PS divided by PA naught is equal to N2 divided by N1 plus N2. Here when solution is very very dilute, then in that case N2 is neglected in comparison to N1, जैसे हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे इक्वेशन सिर्फ क्या बन जाती है, N2 डिवाइडेड N1। अगर हम यहाँ से मोलिकुलर वेट निकालना चाहें सोल्यूट का, तो ये इक्वेशन होती है W2 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय M1 डिवाइडेड W1। क्लियर है, ये हम कर चुके हैं पहले। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम अगर यहाँ पे लिखते हैं तो मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। यूजिंग ऑल दीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वी ईजिली कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। बट आप इसमें अभी ये देखिए,
इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एक्यूरेट मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट जब भी निकाल सकते हैं इफ़ सोल्यूट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, दे नाइदर अंडरगो डिसोसिएशन एंड नॉर अंडरगो एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। अगर हम सोल्यूट को एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं टू मेक अ सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, ना तो ये एसोसिएट होता और ना ही डिसोशिएट होता। उस केस में हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलिकुलर वेट एक्यूरेट निकाल सकते हैं। बट अगर हम ऐसा केस ले इफ़ सोल्यूट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, अगर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, टूट जाता है या एसोसिएट हो जाता है, जस्ट एसिड बेसिस या सोल्ट है कोई सोल्यूट, तो उस केस में अगर हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलिकुलर वेट निकालते हैं सोल्यूट का, तो इट कम्स आउट टू बी एबनॉर्मल। तो वो जितना आना चाहिए वो उतना नहीं आता, इनकरेक्ट आता है। अगर सोल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा क्यों होता है? उस केस में आप ये देखिए, अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है सोल्यूट, अगर वो डिसोशिएट और एसोशिएट हो जाता है, उसको हम किसी पर्टिकुलर सोल्वेंट में डालते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सोल्यूट के वो चेंज हो जाएंगे। अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो चेंज नहीं होते। और जैसे कि आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के। जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल लें, सपोज HCl, हम 1 मोल ऑफ HCl लेते हैं और उसे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद आपको पता है HCl क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट होके ये देगा 1 मोल ऑफ H+ आयन और 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो अब तो 2 मोल्स हो गए, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली रिलेट है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी। और एज वी सी मोलिकुलर वेट इन ईच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर वेट। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन के केस में, जैसे कि HCl डिसोशिएट हो रहा है, अगर बढ़ गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी और उस केस में मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर कोई सोल्ट एसोशिएट होता है, कोई सोल्यूट एसोशिएट होता है कि वो जुड़ जाते हैं मोलिक्यूल्स, व्हेन दे ऐड इनटू अ पर्टिकुलर सोल्वेंट, मोलिक्यूल्स अगर एसोशिएट हो जाते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस आएगी और मोलिकुलर वेट ज़्यादा आएगा। तो इन बोथ द केस मोलिकुलर वेट बिकम एबनॉर्मल। तो दैट इज़ नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। अब हमें यही टॉपिक पढ़ना है कि अगर सोल्यूट हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में हम मोलिकुलर वेट को कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं। अगर हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट कम्स आउट टू बी एबनॉर्मल। तो क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। बट ये प्रॉपर्टीज़, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है इफ़ सोल्यूट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो क्लियर है। तो व्हेन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइंड बाय स्टडी एनी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो सोल्यूट इज सेड टू शो एबनॉर्मल मोलर मास। अगर हम किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलिकुलर मास निकालते हैं सोल्यूट का और वो डिफरेंट आता है, जो उसका मोलिकुलर मास, जो उसका थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे, तो वो क्या शो कर रहा है फिर, एबनॉर्मल मोलर मास। तो देखो इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं। हम एक करेक्शन फैक्टर लगाएंगे, वेंट ऑफ फैक्टर। देखिए तो यहाँ पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होगी, वेंट ऑफ फैक्टर। ये वेंट ऑफ फैक्टर डिनोटेड बाय आई, डिस्कवर्ड बाय वेंट ऑफ इन 1880। ये वेंट ऑफ फैक्टर आई उन्हीं सोल्यूट के लिए यूज़ होगा जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जाते हैं। इट इज़ अ करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस इन ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने के बाद जितने पार्टिकल्स बनेंगे वो डिवाइड बाय पहले जितने पार्टिकल्स थे उनके बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन।
तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डिसोशिएट और एसोशिएट होने के बाद होगी वो होगी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो पहले थी वो है नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई क्या हो गया, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एज वी नो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। तो आई क्या हो गया, इन टर्म ऑफ मोलिकुलर वेट नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास। जो ऑब्जर्व मोलर मास होगा एबनॉर्मल आएगा वो, अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालें। तो अगर हमें आई को सोल्व करना है तो हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, क्लियर है। विद द हेल्प ऑफ मोलिकुलर मास भी हम आई निकाल सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी न्यूमेरिकल में गिवन होगी उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आई होता है MC डिवाइडेड M0, C नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। नाउ देखिए अब आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट देखिए जो सोल्यूट डिसोसिएशन में जाते हैं, जैसे देखिए NaCl 1 मोल ऑफ NaCl है यहाँ पे बिफोर डिसोसिएशन। व्हेन दे डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट दे डिसोशिएट इंटू Na प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो 1 मोल Na प्लस आयन 1 मोल Cl नेगेटिव आयन। तो नंबर ऑफ आयन्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं 2, बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 2। तो वैल्यू ऑफ आई कितनी आ जाएगी 2। सिंपली नंबर ऑफ आयन फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन गिव्स द वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि पहले तो हम सबके कितने ही लेंगे 1 मोल लेके चल रहे हैं, उसके बाद 1 मोल के रिस्पेक्ट में उनके कितने आयन्स बन रहे हैं तो वो हमें आई की वैल्यू बता देगा। जैसे K2SO4 डिसोशिएट इंटू 2K प्लस आयन प्लस 1 सल्फेट आयन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन 3, तो आई कितना हो गया 3। फॉर FeCl3 1 Fe3 प्लस आयन और 3 क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स आफ्टर डिसोसिएशन 4, आई 4। फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट आफ्टर डिसोसिएशन इट गिव्स 2 एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 सल्फेट आयन। तो हियर आई number of ion formed after dissociation is 5. In all the case dissociation cases number of ions increases। 1 लिया था बट 2 3 4 नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेज। तो यहाँ पे जो आई फैक्टर होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से तो हमेशा ज़्यादा ही आएगा। डिसोसिएशन के केस में वैल्यू ऑफ आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ एसोसिएशन के केस में देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। व्हेन इथेनोइक एसिड डिजोल्व इन अ नॉन पोलर सोलवेंट, स्पेशली नॉन पोलर सोलवेंट में होगा ऐसा, पोलर सोलवेंट में नहीं होगा। पोलर सोलवेंट में इट एक्ट एज अ वीक एसिड एंड इट अंडरगो डिसोसिएशन। बट व्हेन एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड डिजोल्व इन अ नॉन पोलर सोलवेंट, 2 मॉलिक्यूल से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इट एसोशिएट टुगेदर टू फॉर्म अ डाइमर। तो ये जुड़ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो एक हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स इथेनोइक एसिड के लेते हैं तो ये सारे पेयर अप होके 50 रह जाएंगे, तो इसमें कम हो जाएंगे। अगर हम 2 लेते हैं तो ये 1 हो गए, फॉर्म है डाइमर। तो इस केस में देखिए नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए 1, और बिफोर डिसोसिएशन बिफोर एसोसिएशन कितने थे 2। तो यहाँ पे आई कितना हो गया 1/2। अगर कोई और एग्जाम्पल ले किसी और सोल्यूट का जो एसोशिएट होता है और आफ्टर एसोसिएशन इट फॉर्म ट्राइमर, 3 मॉलिक्यूल एसोशिएट होके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं ट्राइमर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स आफ्टर एसोसिएशन 1 है और बिफोर एसोसिएशन कितने थे 3। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/3। तो इस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयन्स हैं वो कम हो जाएंगे। अगर 1 लेंगे तो वो हाफ हो जाएगा, 2 लेंगे 1, 3 लेंगे 1/3, 4 लेंगे 1/4 अगर वो टेट्रामर बना रहा है। तो इस केस में आई जो है वो लेस देन 1 होगा। एसोसिएशन के केस में आई फैक्टर जो होगा वो लेस देन 1 होगा, डिसोसिएशन के केस में आई ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया, ग्लूकोज, केन शुगर या एनी अदर एग्जाम्पल, तो उस केस में आई जो होगा वो इक्वल्स टू 1। तो क्लियर है। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो
अब इस आई जो मोलिकुलर वेट अगर हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालना है तो ये करेक्शन फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ये हम इसमें ऐड करेंगे फ्रॉम वन ऑफ द साइड ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उससे जो ये इक्वेशन बनेगी आपकी मॉडिफाइड जो बनेगी इक्वेशन वो क्या बनेगी, ये देखिए वो ये हो जाएगी। अब इस केस में फॉर्मूला जो बनेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पी ए नोट, सेम रहेगा सारा फॉर्मूला, पी ए नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू आई एक्स बी। यहाँ पे हम वन ऑफ द साइड पे आई इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि है वेंटो फैक्टर, करेक्शन फैक्टर इन केस ऑफ इफ सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब आई अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे और उसकी हेल्प से अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जब मोलिकुलर वेट निकालेंगे इट कम्स टू बी एक्यूरेट, और अगर हम आई नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी एबनॉर्मल। क्लियर है? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या करेक्शन हो जाएगी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। तो हम इन सभी इक्वेशंस में आई को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमें न्यूमेरिकल में सोल्यूट के नेचर को देख के पता लग जाएगा, सोल्यूट को देख के आइदर इट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एसिटिक एसिड के केस में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, आपको ये चेक करना है कि सोलवेंट क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में अगर सोलवेंट वाटर है तो इट अंडरगो डिसोसिएशन, और अगर वो कोई नॉन पोलर सोलवेंट है जस्ट एज बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, तो इट अंडरगो एसोसिएशन। तो क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई जो सोल्यूट है वो पार्शली एसोशिएट या पार्शली डिसोशिएट होता है तो भी स्टडी अ न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। न्यू नहीं है वैसे, आपने +1 में भी पढ़ी हुई है ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और हम इसको आई के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।